Hello everyone, welcome to schandacademy. My name is Aditya and you're watching these videos from the book written by Lakhmirsingh and Manjeetkaur for biology of class 10th. So if you are a student of class 10th and studying biology, these videos are going to be very helpful for you. You will be looking at page by page description of the book mentioned, and we'll be understanding the concepts which are given in your syllabus, prescribed and written in this book. So as we have seen, जैसा कि हमने देखा, nutrition जो है that is to fulfill the requirements or needs of a living organism to carry out life processes. And broadly speaking, अगर हम broadly बात करें तो nutrition को हम दो parts में divide कर सकते हैं. Modes of nutrition जो है, we can divide it into two parts. One part is autotrophic and the second part is heterotrophic. Now as the word suggests, जैसा कि हमको यहाँ word से ही पता चल रहा है, auto means automatically, self. Hetero means variable, it is not self, it is derived from elsewhere. तो अगर कोई organism अपना food किसी दूसरे source से लेता है, वो खुद नहीं बना सकता है, that mode of nutrition is called as heterotrophic. But if organism can make their own food and they do not rely on other organisms for deriving their food, that mechanism is called as autotrophic. And that's why organisms can also be broadly classified either as autotrophs or heterotrophs. So if we talk about the autotrophic modes of nutrition, autotrophic mode of nutrition किसे कहते हैं? We call autotrophs are those organisms which can synthesize their own foods. As you can see in this video, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, we have variety of plants surrounding us. Like in large fields, बड़े-बड़े fields में crops होती हैं, paddy, rice, maize, or you might also see gardens in day-to-day life. अपने घर के चारों तरफ gardens हैं, कुछ लोगों के घर में भी plants हैं. So whatever plants, trees you see, they have one characteristic part, that is their green leafy part. उन plants में green leaves होती हैं या कई बार green stem होते हैं. So that green part has a very important constituent which is responsible for their autotrophic mode of nutrition, and that is called chlorophyll. So plants, as you can see in this picture as well, बहुत सारे green leafy plants जो होते हैं, they utilize that carbon dioxide present in the environment and they can synthesize food out of it. Perhaps you can see much better in this animation. आप इस animation में देख सकते हैं कि sunlight आ रही है, plant पर पड़ रही है, plant चारों तरफ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे एटमॉस्फेयर में करीब 0.1% कार्बन डाइऑक्साइड रहती है. सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है that is being taken up by plants in the presence of sunlight, and then it is gradually being converted into C6H12O6, that is glucose. तो ये काम कौन कर रहा है? ये काम लाइट को हार्वेस्ट करने का, क्योंकि लाइट में एनर्जी है, उस एनर्जी को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल के साथ उसी लीफ में कुछ और एंजाइम्स हैं, कुछ और मशीनरी है जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके धीरे धीरे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और वो ग्लूकोज इवेंचुअली सुक्रोज में बदलकर पूरे प्लांट में जगह जगह सर्कुलेट हो सकता है. सो दिस एंटायर प्रोसेस, इसको एक जनरल रिएक्शन के थ्रू हम डिपिक्ट कर सकते हैं, दैट इज 6CO2 प्लस 6H2O that gives rise to C6H12O6, and this is called as photosynthesis, which is taking place in presence of light. At the same time, you will also see in this reaction that there is evolution of oxygen. यहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो रही है. तो कितना इंटरेस्टिंग है, देखिए प्लांट अपना खाना भी बना रहे हैं और उनके खाने का जो बाई प्रोडक्ट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, वो हम सब के लिए, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रेस्पिरेशन का एक इंपॉर्टेंट जरिया है, रेस्पिरेशन करने में मदद करता है. सो इस एनिमेशन में आपने देखा कि किस तरह से प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं और क्यों उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है. सो लेट अस कंटिन्यू फर्दर, हम आगे चलते हैं. अब हम एक दूसरे मोड की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है?
तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो है किसी दूसरी जगह से, हेट्रो मीन्स अदर्स, ट्रोफोस मीन्स न्यूट्रिशन. So when the nutrition is taken from others, then it is called as heterotrophic mode of nutrition, and this is mostly seen in animals. In fact, जो हमने living organisms का plant और animal में classification भी किया है, तो अर्ली डेज में इसी बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया था. ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं वो प्लांट्स कहलाए, और जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड नहीं गैदर कर सकते दे वर कॉल्ड एज, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते दे वर कॉल्ड एज एनिमल्स. बट वी विल सी वन कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट फिट इन ईदर ऑफ दीज ग्रुप्स. इन दोनों ग्रुप्स में से कहीं नहीं फिट होती है, उस कैटेगरी के बारे में भी हम बात करेंगे. लेकिन पहले हेट्रोट्रॉफिक के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं. हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है in which an organism cannot make or synthesize their own food. Like plants, they don't have chlorophyll, but they depend upon other organisms for their food. तो plants तो inorganic चीजों से अपना food बना रहे थे, लेकिन animals जो हैं वो दूसरे organisms से अपना food collect करते हैं. You can see in the insect lot of organisms, lot of day-to-day examples. जैसे एक डियर को देख सकते हैं घास खाते हुए, एक टाइगर को देख सकते हैं डियर को मारते हुए और उसको एज ए फूड कंज्यूम करते हुए, या फिर आप ह्यूमंस को भी देख सकते हैं रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं, ह्यूमंस घर में खाना खा रहे हैं. तो ये सारा क्या है, ऑल दीज थिंग्स आर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ इफ यू कंटिन्यू दिस, अगर हम आगे चलें तो हम देखेंगे कि हेट्रोट्रॉफिक मोड जो है न्यूट्रिशन का वो भी कई तरह का हो सकता है. सारे ऑर्गेनिज्म का जो खाना खाने का तरीका होता है, फूड ऑब्टेन करने का जो तरीका होता है, वो एक जैसा नहीं होता. हेट्रोट्रॉफिक में भी आप देखिए 3 कैटेगरीज यहां पर दी हुई हैं, सेप्रोफिटिक, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक और होलोजोइक. नाउ व्हाट आर दीज 3 थिंग्स? मैं आपको बता रहा था कि एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है जो आप देखेंगे कि ना तो वो ह्यूमन से मैच करता है ना ही वो प्लांट से मैच करता है. दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सेप्रोट्रॉफिक और सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो व्हाट डू यू मीन बाय सेप्रोफिटिक? इसका मतलब है कि डेड और डिकेड मैटर, डेट्रिटस जिसे हम कहते हैं, जो सड़ी गली चीजें होती हैं, उनसे फूड उनको एज अ न्यूट्रिएंट मानते हैं. तो देखिए नेचर में कितना बैलेंस बना हुआ है इन चीजों का. अगर सारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक जैसा ही होगा, सारे ऑटोट्रॉफ्स ही होंगे, तो क्या प्रॉब्लम होगी? इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो टॉक्सिक लेवल तक पहुंच जाएगी. तो अगर सब ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ होते, ह्यूमंस भी ऑटोट्रॉफ होते, प्लांट भी ऑटोट्रॉफ होते, तो भी लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती थी. अगर सारे ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफ होते तो भी मुश्किल था, क्योंकि उस सिचुएशन में सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो जितना भी अवेलेबल फूड था उसे खत्म कर देते, ऑर्गेनिक चीज़ें खत्म हो जाती. और साथ ही साथ जब कोई भी प्लांट और एनिमल की डेथ होती है, जब वो डिके होने लगता है, आप कभी देखते हैं कि डेड एंड डिकेड बॉडीज के साथ क्या होता है, वो इवेंचुअली उनके न्यूट्रिएंट्स, उनके अंदर के जो कंपोनेंट हैं वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं एंड दे गेट एलिमिनेटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स व्हिच कंज्यूम दोज डेड एंड डिकेड मैटर एज फूड. दे इंक्लूड लॉट ऑफ माइक्रोब्स, दे इंक्लूड फंजाई, बहुत सारी फंजाई हैं, फंगस हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो डेड और डिकेड मैटर पे डिपेंड करते हैं. उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सेप्रोफिटिक, और ये साइकिल को मेंटेन करने के लिए, अर्थ को पॉल्यूटेड होने से और न्यूट्रिएंट का एक बैलेंस बना रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है. आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं फंगस. इसके अलावा आपने और भी कई जगह देखा होगा. आई मीन यू माइट हैव सीन समटाइम्स कि कभी घर में रखा हुआ ब्रेड पुराना हो जाता है, कोई चीज़ रखी हुई फूड आइटम पुराना हो जाता है तो उसके ऊपर फंगस लग जाती है, एज यू कैन सी इन द इंसेट हियर. ऐसे ही कभी आप रास्ते पर जा रहे हैं रेनी सीजन में स्पेशली, तो कहीं फॉरेस्ट एरिया में सड़े गले पत्ते होते हैं, उनके ऊपर भी फंगस ग्रो हो जाती हैं, मशरूम्स ग्रो हो जाते हैं, राइट. तो ये सारी चीजें क्या हैं? दे टेक न्यूट्रिशन ओनली फ्रॉम डेड एंड डिकेड मैटर, एंड दिस इज कॉल्ड एज सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो दिस होल थिंग इज एक्सप्लेन्ड हियर. सेप्रोफाइट उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं, और उनमें से एक एग्जाम्पल है फंगस का, फंजाई. सो मशरूम्स are one of the examples of saprophytic organisms.
देन इफ यू टॉक अबाउट अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर हम एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो वो है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाकर फिर अपना फूड कंज्यूम करते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय पैरासाइट? यू माइट हैव हर्ड अबाउट ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड मलेरियल पैरासाइट और टेप वॉर्म। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चले जाएंगे, जैसे टेप वॉर्म होता है। आप इस पिक्चर में यहां पर देख सकते हैं इंसेट में कि टेप वॉर्म के पास एक हुक होता है, उसके माउथ में एक हुक रहता है, वो हमारी इंटेस्टाइन में जाकर वो हुक लगा लेता है, अपना हुक अटैच कर लेता है, और जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम न्यूट्रिएंट लेते हैं, वो सीधे सीधे उन न्यूट्रिएंट्स को रेडीमेड फूड को एब्जॉर्ब करने लगता है और उससे वो ग्रो हो जाता है। सो दैट इज वन एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अनदर इज मलेरियल पैरासाइट। मलेरिया करने वाला जो मलेरियल पैरासाइट है वो आप यहाँ इंसेक्ट में देख सकते हैं। वो कुछ टाइम मॉस्किटो की बॉडी में रहता है, मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड में रहता है, लेकिन जब मॉस्किटो हमें बाइट करते हैं तो वो उसके सलाइवा से हमारे ब्लड में आ जाता है और फिर वो हमारी रेड ब्लड सेल्स के अंदर, लिवर के अंदर, कई जगह एक साइक्लिक फॉर्म में जगह जगह जाता है और वहाँ से न्यूट्रिएंट गैदर करता है, रिप्रोड्यूस करता है। सो द डिफरेंस इन सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक मोड में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि सैप्रोफिटिक में किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का नुकसान नहीं हो रहा है, उसमें बल्कि बेनिफिट हो रहा है एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट क्लीन हो रहा है। लेकिन पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म तो बेनिफिटेड हो रहा है जबकि दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है, अनदर वन इज बीइंग हार्म्ड, दूसरे को नुकसान हो रहा है। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहां पर आप देख सकते हैं कि एक दूसरे वॉर्म की बात की गई है, दैट इज राउंड वॉर्म। तो जैसे टेप वॉर्म मैंने आपको बताया, वैसे ही टेप वॉर्म की तरह एक राउंड वॉर्म भी होता है। राउंड वॉर्म भी हमारे स्टमक इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब, फूड को एब्जॉर्ब करता है। जनरल लैंग्वेज में, अगर आप लेमैन लैंग्वेज में कहें तो हम लोग बोलते हैं कई बार पेट में कीड़े हो गए किसी के। सो समटाइम्स जो स्टमक में हम कीड़ों की बात करते हैं वो कई बार इस तरह के वॉर्म्स होते हैं जो कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे होते हैं। नाउ थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज द मोस्ट कॉमन ऑफ कोर्स, तीसरा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सबसे कॉमन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, विच इज ऑल्सो हेट्रोट्रॉफिक, दैट इज कॉल्ड एज होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है कंज्यूमिंग द होल थिंग और कंज्यूमिंग द सॉलिड फूड। सॉलिड फूड खाने को हम बोलते हैं होलोजोइक। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स, आप कुछ यहाँ पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। यू कैन सी हियर जिराफ is having a holozoic mode of nutrition, और as we have seen in previous video, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखे थे, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं लोग और टाइगर जो है एक डियर को मार कर खा रहा है, एक छोटी फिश बड़ी फिश को ओशंस में खा रही है। तो इसमें क्या है, एनगल्फमेंट हो रहा है फूड का, दे आर एनगल्फिंग द लार्जर फूड। वी हैव स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म्स, हम फूड को च्यू भी कर सकते हैं, चबा सकते हैं, तो हमारे पास और भी स्पेशलाइज्ड मशीनरी है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। और इस होलोजोइक में भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशंस होते हैं फूड को कंज्यूम करने के। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हर्बीवोर होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कार्निवोर होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑमनीवोर होते हैं। तो अगर हम होलोजोइक की बात भी करें तो होलोजोइक मोड में भी चॉइस हो सकती है, वी कैन हैव चॉइस। दैट मीन्स organisms can either take herbs, they can only depend upon plants, they will be called as herbivores, or they can consume other organisms, they are called as carnivorous, or they can take anything, like depending on need, they can either take plant products, like you can say about bear, जो भालू होते हैं वो कभी कभी हनी भी खा लेते हैं, फ्रूट्स भी खा लेते हैं, दूसरे एनिमल्स को मार के भी खा लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट और एनिमल दोनों सोर्सेस के फूड खाते हैं उन्हें हम ऑमनीवोर्स कहते हैं। ह्यूमंस के लिए टर्म्स थोड़े अलग हैं। ह्यूमंस में हम हर्बीवोर, कार्निवोर और ऑमनीवोर टर्म यूज नहीं करते हैं, बट वी यूज द टर्म वेजिटेरियन, वेगन और नॉन वेजिटेरियन, इस तरह से हम terms use करते हैं। but these are, you can say, the choices of food which are preferred by different holozoic organisms. So I think by now we have already discussed about different modes of nutrition which was essential part of
life process. So if we summarize this part 2 of the video, part 1 में हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, हमने बात की थी कि न्यूट्रिशन क्या होता है, लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, और पार्ट 2 में हमने एक लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन के मोड्स के बारे में स्पेसिफिकली बात की. तो ब्रॉडली स्पीकिंग मोड्स आर ऑफ 2 टाइप्स. Either it is autotrophic mode or it is heterotrophic mode. In autotrophic mode, we can make our own food. Plants are examples for that. They take inorganic resources from environment like carbon dioxide, water, and make use of chlorophyll and light to synthesize food. On the other hand, heterotrophic mode of nutrition requires food derived from other sources. और हमने ये भी देखा कि हेट्रोट्रॉफिक मोड में 3 अलग अलग वेरिएंट्स हो सकते हैं, 3 तरह के वर्जन्स हो सकते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड के. वन वाज होलोजोइक which is taking the whole food, another is parasitic and yet another is saprophytic. तो पैरासिटिक में एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाकर कोई ऑर्गेनिज्म फूड कंज्यूम करता है, और जो सेप्रोफिटिक मोड है उसमें एनवायरनमेंट की क्लीनिंग होती है, डेड एंड डिकेड मैटर जो है उसको कंज्यूम किया जाता है. सो फंगस इज एन एग्जांपल ऑफ सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मलेरियल पैरासाइट, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, ये सारे एग्जांपल्स हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के. और ह्यूमंस, डियर, टाइगर, ये सारे एग्जांपल्स हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के. सो विद दिस वी एंड द वीडियो हियर. यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करेंगे. एंड आई होप यू आर एंजॉइंग दीज वीडियोज. आपकी तैयारी जो है एग्जाम की और आपकी प्रिपरेशन इस बुक के साथ बहुत अच्छी हो रही होगी. दिस इज व्हाट आई बिलीव. एंड इफ यू वांट टू कंटिन्यू द डिस्कशन, यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड सी ऑल द वीडियोज रिलेटेड टू दिस टॉपिक. आप फिर इस चैनल पर वापस आ सकते हैं. यू कैन शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड यू कैन ऑलवेज एंजॉय लर्निंग फ्रॉम देयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.